webinar organized by the Department of Home Science, School of Humanities and Arts. The topic of the webinar is Holistic Approach Needed to Sustain in Pandemic COVID-19. Before starting with the webinar and listening to the beautiful words of our guests, I would like to give you a brief profile of Sanjay Shiksha Samiti, under which the Apex University is blossoming. Well, Sanjay Shiksha Samiti is an educational society serving the nation for over 55 years, and it was established in 1965 by a group of distinguished luminaries of the society belonging to the field of education, business, and industry. It is the sponsoring body of the Apex Foundation in the state of Rajasthan. The professed aim and objective of the Apex Foundation is to develop world-class infrastructure facilities for imparting quality and value-based education to the students from primary to doctoral level. The ultimate mission of the Apex Foundation is to contribute to the society, the nation, and the world community through pursuit, dissemination, and application of knowledge of the highest level of excellence in the field of academic, technical, and professional education. As an outcome of the phenomenal growth and development during these 54 glorious years, institutions under the Sanjay Shiksha Samiti are, namely, Apex Institute of Management and Science, Apex Institute of Engineering and Technology, Apex Polytechnic Institute, School of Architecture, Sanjay Teachers Training College, Shri Marudhar Keshri Balika STC College, Jaipur, Apex College for Girls, and Apex International School. All these institutions offer diploma, undergraduate, and postgraduate programs in a variety of academic, technical, and professional courses, and affiliated by the competent authorities. Apex University, Jaipur, near Achrol on the main Jaipur-Delhi National Highway number 8, is another landmark achievement of the society. Today, an approximate number of 6,500 students and 500 staff members are an integral part of this Apex family. Now, I would like Assistant Professor Ms. Aarti Sharma to tell you more about Apex University. Thank you. Good morning and a very warm welcome to this webinar. Soumya ma'am has already told you about the Apex University, and now I would like to brief you about the vision of the university. We are committed for the overall development of our students. We always want to give wings to the imagination of our students. We want to inculcate desire and curiosity, which are two amulets from which they can win all the possibilities of their life. We desire that our students do everything by reason and common sense. I would like to share a few lines of Dr. Kavita Kala, who is a very renowned Hindi poetess. कि जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिरकर जीना, वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल पीना. आंखों में आकाश सजाना, मुट्ठी में बादल कर लेना, कस्तूरी के लिए भटकना और खुद को पागल कर लेना. तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का संकुचित दायरा ना रहे सोच का. We always want that our students should not confine their thoughts, rather they should have an everlasting, ever-widening thought, I should say. Now, I would like to request Dr. Smita Kulfresh ma'am to continue with the dignitaries. Ma'am, please. आगे रहने समय मैम को पता करके आई नहीं. दिल्ली की तरह और मेरा और वो आता है ना, तो नहीं यूज करते.
ये पूरा इधर कर दे थोड़ा सा, ये वाला बहुत ज्यादा उधर जा रहा है कि हटा ही नहीं पा रहा है। उधर से दबा दो अंदर। हाँ देख लिया आपने, करूँ ये तो, इसको तो मैं हाथ ही नहीं लगाऊं, ये क्या आ गया? हाँ बोलिए। हेलो, यस मैम। ठीक ठीक। शिट, सच्ची मैडम आप चेक करने फोन आ गया ना, बीच हो गया फोन आ गया। अब ऑन वापस शुरू करना है, ये ऑफ कर दिया मैंने, ऑफ कर दिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा आज एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है होलिस्टिक अप्रोच रिलेटेड टू सस्टेन इन पैंडेमिक कोविड-19। कोविड-19 का संक्रमण व इसका खौफ पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस लॉकडाउन की वजह से हमारी लाइफस्टाइल और हमारा डाइट पैटर्न प्रभावित हुआ है। आप सभी को विदित है कि यह जो फेज है, यह सबसे घातक फेज है, जिसमें कम्युनिटी पर संक्रमण का असर हो रहा जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम समग्र रूप से प्रयास कर सकते हैं कि हम आहार संबंधी ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। हम कैसे अपने स्वास्थ्य को मजबूत रख सकते हैं, मानसिक स्थिति हमारी कैसे एवं किस प्रकार से हम वैदिक न्यूट्रिशन यानी कि पुराने समय में जो आयुर्वेद या जो ठंडा और गर्म शरीर की प्रकृति के अनुसार भोजन लेते थे, इस विषय में हम और अधिक चर्चा करेंगे। अत्यंत हर्ष की बात है कि आज हमारे साथ हमारे एमिनेंट स्पीकर्स डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। डॉक्टर कीर्ति गोपलानी मैम, आप प्रिंसिपल हैं एल्जिब्रा कॉलेज कोटा में। भोपाल से हमारे साथ में डॉक्टर प्रीति मालविया जुड़ रही हैं।
हमारी डीन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स डॉक्टर गुलनार चंद्रानी मैम, आप हमारी मार्गदर्शक हैं। आपके बिना यह वेबिनार संभव नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैम कि आपने इसी शेड्यूल में से समय निकाल कर और आप यहाँ पे जानकारी हमें देंगे। कोरोना का सीधा संबंध हमें हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हम कैसी डाइट में किन बातों का ध्यान रखें, इन सभी चीजों की अधिक जानकारी के लिए मैं डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल मैम को आमंत्रित कर रही हूँ। डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल मैम, आप शायद अभी कनेक्ट नहीं हो पाई हैं। डॉक्टर स्मिता, हेलो स्मिता, आई एम देयर। मैम, आप कनेक्ट हो गई हैं? हाँ बिल्कुल जी मैम। तो मैम आपका स्वागत है वेबिनार में। डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल, आप फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, होम साइंस डिपार्टमेंट में हेड और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप विभिन्न स्टडीज आईडीए की, इसके अलावा आप डिजाइन इनोवेशन सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में भी फॉर्मर कोऑर्डिनेटर रही हैं। आपके अंडर में 12 स्टूडेंट्स पीएचडी कर चुके हैं एवं 6 स्टूडेंट्स अभी भी पीएचडी कर रहे हैं। 50 से अधिक रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश्ड हैं, बुक्स और बुकलेट्स भी पब्लिश हो चुकी हैं। आपने 13 प्रोजेक्ट्स यूनिसेफ और यूजीसी द्वारा फंडेड कंप्लीट किए हैं एवं 100 से अधिक वेबिनार में आप भाग ले चुकी हैं, अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत कर चुकी हैं। डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल, आप आमंत्रित हैं अपने व्यूज देने के लिए। शेयर। थैंक यू स्मिता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्मिता, एक बार पहले मुझे अलाउ करो मेरा स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा मैम, एक मिनट मैं चेक करती हूँ। जी मैम, आपने अभी हेलो। हाँ, माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ। यस यस, okay. So first of all I would like to thank the organizers for inviting me to share my experiences and speak on health and dietary concern for well-being. Now जैसा अभी स्मिता ने बताया कि कोविड-19 पेंडेमिक का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ा है। और क्या प्रभाव पड़ा है कि हमें हमेशा संक्रमण का खतरा रहता है, फियर ऑफ बीइंग कंटामिनेटेड। हम घरों में सीमित हो गए हैं, हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करने लगे हैं। हमारा टीवी वॉचिंग टाइम बढ़ गया है, हम कंप्यूटर और मोबाइल पे ज्यादा काम करने लगे हैं। भोजन की उपलब्धता एक चैलेंज हो गया है हमारे लिए। और जो पेशेंट्स क्रॉनिक इलनेस से सफर कर रहे हैं, डायबिटीज, कैंसर और हार्ट पेशेंट और कोई अन्य बीमारी से, उनकी केयर एक मुश्किल हो गई है। और एक और बहुत अच्छी बात, अच्छी या बुरी ये उस पर डिपेंड करता है कि YouTube चैनल देख के सब लोग घर में नई नई रेसिपीज बनाने लगे हैं। तो कई बार वो रेसिपीज यदि फ्राइड, फैटी, एनर्जी डेंस हो तो उससे कंजम्पशन ऑफ एनर्जी डेंस फूड बढ़ गया। कुछ अच्छी बातें भी हुई है। ईटिंग आउटसाइड होम हैज रिड्यूस, हमने बाहर खाना कम कर दिया है, जंक फूड खाना कम हो गया है। एंड सोशल गेट टुगेदर्स, पार्टीज, चाहे वो मॉडर्न हो, बर्थडे पार्टी और प्रमोशन पार्टीज, और ट्रेडिशनल पार्टीज लाइक गेट टुगेदर, सहस्त्रगढ़, सवामनी और सब तरह की पार्टीज कम हो गई है। और ज्यादा हम हाइजीनिक हैबिट्स फॉलो करने लगे हैं। और
बहुत ज्यादा डेटा मीडिया पे अवेलेबल है, तो लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं। नाउ क्या करें? ways to overcome social distancing, we all know कि social distancing से हम संक्रमण जा सकते हैं। good hygienic practices follow करना है हमें, hand washing and take care of our clothes and everything. Good nutrition is one of the key to health and an important part of supporting a strong immune system. Keep hydrated, quit smoking or reduce smoking, exercise regularly, get adequate sleep, minimize and cope with stress by doing meditation, yoga, pranayam, etc. Make good food choices for a healthy, balanced diet throughout life. Good care of patients suffering from chronic diseases. Now, general concerns: continue to practice good food hygiene, maintain food safety by practicing following things: keep clean and hygienic surroundings, store raw and cooked food separately, cook properly, cook food at proper temperature, keep food at proper temperature, use safe water and raw material, prevent food wastage. Now, we have to prevent household food waste also. घर में जो भोजन व्यर्थ होने से बचाना है। छोटे छोटे पोर्शन साइज लें खाने के लिए। बचे हुए भोजन का सम्मान करें, या तो आप उतना ही लें जितना खाएं और फेंके ना। स्मार्टली खरीदारी करें, फ्रिज को चेक करते रहें, पहले जो चीज खरीदी गई है और रखी है उसको पहले इस्तेमाल करें, और सबकी डेट देखें, एक्सपायर कब हो रहा है भोजन, उसके पहले पहले इस्तेमाल कर लें जो भी प्रोडक्ट्स पड़े हमारे पास। वेस्ट अगर बच गया है तो उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करें, खाद बना लें, और शेयर करें। अगर आपका कुछ खाना बचा है तो पेट्स को दें, एनिमल्स को दें, हेल्पर्स को दें। नाउ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, ये पेंडेमिक के दौरान ये भी जरूरी है कि हम संक्रमण से बचें लेकिन स्वस्थ भी रहें। सो स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस्ड डाइट जरूरी है। बैलेंस्ड डाइट क्या है? अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट एंड प्रोपोर्शन। सभी पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा और अनुपात में उपस्थित रहना जरूरी है, और इसके लिए हमें सबसे पहले ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमें कार्य करने के लिए चाहिए। ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट अनाज व धान, सीरियल्स एंड मिलेट्स। सो हमें क्या करना चाहिए? अप्रोप्रिएट कंजम्पशन, हमें पर्याप्त मात्रा में सीरियल्स खाना चाहिए सो दैट वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। साबुत अनाज खाएं, अंकुरित करके खाएं, और फर्मेंटेड फूड्स खाएं, जिससे कि इनका पोषक तत्व बढ़ जाता है। मिलेट्स आर न्यूट्रिशनली सुपीरियर, उसमें ज्यादा मिनरल्स होते हैं, ज्यादा फाइबर होते हैं। सो हमारे दैनिक भोजन में मिलेट्स का समावेश जरूर करें। शुगर एंड जैगरी आर कैलोरी डेंस, प्रोवाइड एनर्जी। सो रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में हमें शुगर, जैगरी और इनसे बने भोज्य पदार्थ खाने चाहिए। रूट्स एंड ट्यूबर्स, आलू, अरबी, शलगम, बीट रूट, ये सभी भी एनर्जी देते हैं और इनका इस्तेमाल भी लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। फैट्स एंड ऑयल्स एनर्जी डेंस फूड है, और हमें अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए। 20 से 25 ग्राम फैट सफिशिएंट है पूरे दिन में, और क्वालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। वी शुड ईट हेल्दी ऑप्शंस, फूड रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे कि हमारा फ्लैक्सीड है और वॉलनट है, इन्हें हमें अपने डाइट में समावेश करना चाहिए। ऑयल्स आर फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिच होता है, इसलिए हमें ऑयल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नट्स एंड ऑयल सीड्स भी फैट का अच्छा सोर्स है। अलावा फैट के प्रोटीन भी होता है, और इसमें मिनरल्स भी होता है। सम फैक्ट्स अबाउट फैट, सभी जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल फ्री हैं, और हमें बदल बदल के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग रिपीटेड हीटिंग, बार बार उसे गर्म नहीं करना चाहिए। एक बार अगर फ्राइंग के लिए इस्तेमाल किया है तो उसे दोबारा ना करें, क्योंकि उससे उसमें ट्रांस फैट बन जाते हैं और एसेंशियल ऑयल खत्म हो जाते हैं। अवॉइड यूजिंग हाइड्रोजनेटेड फैट, जो वनस्पति घी है या वनस्पति वसा है, उसे हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो नुकसानदायक है, और बेकरी प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, और घी और बटर हमें सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना। अनहेल्दी फैट, सैचुरेटेड,
अगर बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो अनहेल्दी है। और ट्रांस फैट, जो कि हम वनस्पति घी की बात कर रहे थे। प्रोटीन, हमारे भोजन में दैनिक प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी की जब बात करें तो प्रोटीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर इम्यूनिटी। इम्यूनोग्लोबिन्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन हमें मीट, फिश, पोल्ट्री से मिलता है। दे आर गुड सोर्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन। और जो भी जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्रोत है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स शुड बी कंज्यूम डेली। कम से कम 2 ग्लास दूध व दूध से बने पदार्थ जरूर हमारे भोजन में समावेश होना चाहिए उनका, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोटीन का सोर्स है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी और विटामिन ए भी है। और वेजिटेरियंस के लिए यही एकमात्र गुड क्वालिटी प्रोटीन का सोर्स है। पल्सेस एंड सोया प्रोडक्ट्स, जो कि अच्छे प्रोटीन के सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए इन्हें अनाज के साथ मिश्रित करके खाएं। दूध व दूध से बने पदार्थों के साथ मिश्रित करके खाएं, जिससे कि भोजन जो प्रोटीन है वो कंप्लीट हो जाती है और अच्छी गुणवत्ता वाली हो जाती है। एंड नट्स एंड ऑयल सीड्स आर आल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो उनको भी हमें हेल्दी नट्स को यूज करना चाहिए। विटामिन एंड मिनरल्स हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिसीजेस। Fruits and vegetables are good source of minerals and vitamin. They provide fiber and phytochemicals. So consume liberally. All fruits and vegetables should be consumed liberally. At least 5 serving. दिन में कम से कम 5 सर्विंग, जो कि 70 से 100 ग्राम की होती है, वो हमें खानी चाहिए। आप जब भी कोई भी भोजन करें तो आपका आधा जो प्लेट है वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से भरा होना चाहिए। As far as possible, consume fresh vegetables and fruits in the form of salad. And अगर आप कुक कर रहे हैं तो हेल्दी कुकिंग मेथड्स यूज करना चाहिए। उसे डीप फ्राइड फ्राई ना करें, बहुत ज्यादा वसा के साथ मिश्रित ना करें, और स्टीमिंग, स्ट्यूइंग, सॉटिंग, ये कुछ हेल्दी कुकिंग मेथड्स हैं जिसको हम यूज करके और इनको हम खा सकते हैं। मेक श्योर दैट यू गेट इनफ आयरन। हम सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात ना करें, हमारा बॉडी में एनी प्रॉब्लम मीता? ठीक है। We should consume enough iron to get for hemoglobin synthesis. So meat, fish, poultry, egg yolk are good source of iron. Pulses and legume, अगर उन्हें अंकुरित करेंगे, रोस्टेड पल्सेस हैं, जैसे रोस्टेड चना है, उसमें ज्यादा आयरन होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मोटा धान जैसे बाजरा, पोहा, एमरंथ सीड, राजगिरा का में बहुत ज्यादा आयरन है। तिल, defatted coconut, soya, defatted soya nuggets are iron rich. Fruits में हम dates, watermelon, pineapple, iron fortified cereal and jaggery, इनका समावेश हमारे डाइट में जरूर हो ताकि हम सफिशिएंट आयरन ले सकें। हम सभी महिलाएं हैं और हमें आयरन की बहुत अधिक आवश्यकताएं हैं। Water is very, very important for immunity boosting and for keeping fit, keeping healthy. So stay well hydrated. Drink 6 to 8 or even more glasses of plain water, and you can have water in terms of from buttermilk, नींबू पानी, कैरी का पानी पीजिए, जलजीरा, सौंफ का पानी। डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं पानी के अंदर, खीरे का स्लाइस, नींबू का स्लाइस, पुदीना पत्ते और कुछ फ्रूट्स के स्लाइसेस भी डाल के आप रख दीजिए रात भर, और सुबह उस पानी को पिएंगे तो डिटॉक्स, उसमें काफी सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाएंगे जो बॉडी को डिटॉक्स कर। क्लियर सूप्स, लेमन टी, आइस टी, काढ़ा, इवन सूप्स, जूसेस, इन सभी से हमें पानी प्राप्त होता है और इनका समावेश हमें पूरे दिन में जरूर हमें खूब पानी पीना चाहिए। हमें कार्बोनेटेड और जो नॉन एरिएटेड हाई कैलोरी डेंस बेवरेजेस हैं, जैसे फ्रूटी, माजा, कोका कोला, फैंटा, मिरांडा, ये जो डिफरेंट एरिएटेड बेवरेजेस हैं और नॉन एरिएटेड बेवरेजेस हैं, इनका हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटीन है, एम्प्टी कैलोरीज है। एंड अल्कोहल का कंजम्पशन रिस्ट्रिक्ट करें या तो ना करें, और जो बहुत ही अल्कोहल पीने वाले हैं उनको
क्वांटिटी रिड्यूस करना चाहिए. नाउ Eat Right India movement says that eat local. हमें locally grown vegetables, fruits and सभी अनाज और दालों का इस्तेमाल करना चाहिए. सीजनल भोज्य पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे हर मील में वैरायटी ऑफ फूड, फूड डाइवर्सिटी जो हम कहते हैं, विविधता होनी चाहिए ताकि हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिले. Our diet, our plate should be filled, half of the plate should be filled with fruits and vegetables, then comes major portion cereals, then pulses, then nuts and oil seeds, then fats and oil. And our diet must contain a glass of milk or a katori of curd or any other equivalent of milk and milk products. इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स, जब हम कोविड की बात करें और इम्यूनिटी बूस्टर फूड की बात ना करें तो ऐसा लगता है अधूरे रह गए. सो फूड्स रिच इन गुड क्वालिटी प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन इज द बेस फॉर इम्यूनिटी. फूड्स रिच इन विटामिन सी, these are the fruits rich in vitamin C: amla, guava, oranges, lemon, fresh vegetables, sprouts. Then foods rich in vitamin D, mainly fish oil, animal foods, and sun exposure is necessary for vitamin D synthesis, or otherwise vitamin D supplements लेने पड़ते हैं. Foods rich in zinc, vegetarian source में जैसे pumpkin seeds, cashew nuts, and certain oil seeds like till, they are good source of zinc. So हमें zinc is also an antioxidant and boost immunity. Foods rich in antioxidants such as papaya, kiwi, amla, green leafy vegetables. Probiotics and prebiotics are very good. They are good for our gut health. और हमें दही और प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आते हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए. और इसके साथ जो फाइबर रिच सीरियल्स हैं वो प्रीबायोटिक्स की तरह काम करती है. तो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स आर आल्सो इम्यूनिटी बूस्टर्स. स्पाइसेस सच एज टर्मरिक बिकॉज इट कंटेन्स curcumin, garlic, ginger, cinnamon, clove, cardamom. ये कुछ नाम है जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. और हम फॉर्चुनेट है कि हमारी इंडियन डाइट जो है, हमारा कुकिंग मेथड ऐसा है कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हल्दी, गार्लिक, जिंजर ये हम इस्तेमाल करते हैं. लेकिन विशेष रूप से यदि आप कोविड की बात करें तो आप 1 ग्लास दूध हल्दी डाल के रोज पी सकते हैं. और अपने भोजन में अदरक का समावेश जरूर करें. अदरक की चाय, अदरक का काढ़ा, और ये सब बना सकते हैं. टी इज वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर. Vegetables and fruits rich in polyphenols and phytochemicals, and water, honey, spirulina and अभी एकदम wheatgrass. स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा Also, सेट होने में टाइम लग रहा है ऑनलाइन में, क्योंकि ये wheatgrass. सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि इनको सब्जेक्ट्स को हम उससे पढ़ा नहीं पाते हैं, तो अभी वो सेटल ऑन होने में टाइम. Eat right. We have to reduce calorie in the diet, restrict use of sweets, chocolates, हम cake, लोग कर रहे pastries, हैं. sharbat, aerated drinks and other foods. Stop eating fried and fatty foods. Stop eating empty calorie foods we have talked about. हाँ, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, छोटे छोटे भोजन के पोर्शंस बार बार खाएं. फाइबर रिच फूड खाएं. अपने सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करें डाइट में. सॉल्ट अभी कैसे इसकी रिड्यूस करेंगे? guideline कट डाउन द 31 सॉल्ट इन द डाइट टू 5 grams. क्या है, Reduce the amount of salt in the cooking. अभी तो प्रमोट कर दिया इन लोगों को. लो सोडियम डाइट सॉल्ट लें. अभी और तक क्लियर other, नहीं है. जो एंड है कि हम उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को सीजनिंग्स हैं वो इस्तेमाल करें. और बेकरी प्रोडक्ट्स का कम इस्तेमाल करें. अचार, पापड़, चटनीज इत्यादि में बहुत ज्यादा नमक होता है, इनका इस्तेमाल सीमित रूप से करें. ज्यादा फाइबर रिच फूड खाएं. फाइबर्स आर देयर इन whole grains, whole cereals, barley, flaxseed, oatmeal. All vegetables and fruits are rich in fiber. So we have to start our day with high fiber food. And in every meal, we should consider that we should include fibers in the diet. And our diet should be colorful. See how colorful fruits and vegetables and other foods are available in nature. So we should include colorful fruits, vegetable
and make our plate colorful. So thank you so much for giving me an opportunity to share my views, and I can take up the question answer now. Over to you, Smita. हेलो, हेलो। थैंक यू मुक्ता मैम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। एक व्यूअर का क्वेश्चन है मैम कि डायबिटिक्स को कौन कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए और कौन से फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए? डायबिटीज में एक्चुअली जो फूड्स हमें, पहली बात तो ये कि मील्स रेगुलर टाइम पे लेने चाहिए। फास्टिंग एंड फीस्टिंग शुड बी अवॉइडेड। ना ज्यादा बार खाएं, ना ज्यादा भारी भोजन खाएं, और ना कोई मील मिस करें। दूसरी बात है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर, मैदा और ऐसे फूड्स अवॉइड करने चाहिए, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड खाने चाहिए, ऐसे जिसमें हाई फाइबर हो और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, ऐसे फूड्स खाने चाहिए। आप वेजिटेबल्स बहुत सारी आप ले सकते हैं। आपको बेवरेजेस भी ऐसे लेने चाहिए जो लो कैलोरी बेवरेज हो, लाइक बटर मिल्क है, आप टोमेटो जूस है, आप नींबू पानी है, ये ले सकते हैं। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स खाने चाहिए, लाइक कर्ड है, ठीक है। तो इस तरह के फूड्स हमें लेने चाहिए। हाई प्रोटीन फूड्स हम प्रेफर करते हैं फॉर डायबिटीज। फैट्स भी कम करते हैं, क्योंकि डायबिटिक पर्सन्स जनरली कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स प्रोन होते हैं उस डिजीज के लिए। सो हमें फैट भी लिमिटेड मात्रा में देनी चाहिए। जी मैम, क्योंकि अभी डायबिटीज अगर है तो कोरोना के लिए भी बहुत रिस्क है, तो इसीलिए वो स्पेशली जानना और कोरोना के केस में मैं ये भी कहूंगी कि डायबिटिक पेशेंट्स को टाइम टू टाइम, क्योंकि हर के पास घर पे वो स्ट्रिप्स होती हैं चेक करने का, तो अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखें। तो कई सारे ऐसे फूड्स होते हैं जो शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। जी मैम। मैम, एक जो 60 इयर्स के ऊपर लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत रिस्क बढ़ गई है, और ये कहा जा रहा है कि उन्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो स्पेशली उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उन्हें अपनी डाइट और अपनी रूटीन को कैसे सेट करना चाहिए कि उनकी इम्यूनिटी भी बनी रहे और वो स्वस्थ बने रहें? जो भी हम डाइट, बैलेंस डाइट की बात करते हैं, वो सब उन पे भी लागू होती है। जो भी एल्डरली के लिए डाइट है, एल्डरली के लिए स्पेशली हम ये कहते हैं कि डाइट शुड बी सॉफ्ट, शुड बी, उसको हम फाइबर रिच भी कह सकते हैं, लेकिन ईटिंग में प्रॉब्लम ना हो, ऐसी डाइट हम दें। और खासतौर पे कोई भी इन्फेक्शन से बचें, तो हम जैसे कहते हैं 60 इयर्स के बाद वो बाहर कम जाएं, इस खासतौर पे पेंडेमिक में, और घर में भी अपने आप को इन्फेक्शन से बचाए रखें। तो अभी जैसे मौसम बदल रहा है, और इस बदलते मौसम में भी हमें कोल्ड कॉफ हो सकता है, तो उसे भी बचाए रखना है, जिसके लिए हम हॉट वाटर पी सकते हैं। बैलेंस डाइट हमें खानी चाहिए, जिसमें प्रॉपर प्रोटीन बहुत जरूरी है, क्योंकि वेयर एंड टियर एल्डरली में ज्यादा होता है। कैल्शियम ज्यादा चाहिए, क्योंकि बोन्स के लिए हमें कैल्शियम चाहिए। एंड प्रोटेक्टिव फूड्स लाइक मिनरल्स एंड विटामिन, उनको बहुत ज्यादा चाहिए, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सफिशिएंट अमाउंट में खाएं। और एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा फ्राइड एंड फैटी फूड्स एंड हाई शुगर फूड्स, एक्स्ट्रा सॉल्ट, ये सब बहुत कम खाने चाहिए। जी मैम, बिल्कुल मैम। एक क्वेश्चन मैम और व्यूअर्स जानना चाह रहे थे कि जैसे अभी बच्चे हैं और लॉकडाउन के टाइम में वो घर पर ही रहे हैं, तो वैसे तो ये बहुत पॉजिटिव है, जैसे कि आपने भी बताया कि हम घर पर ही बना के खाना उनको खिला रहे हैं, और उनकी थोड़ी ईटिंग हैबिट्स भी अच्छी होती है, क्योंकि घर का खाना हमेशा अच्छा ही होता है। पर फिर भी वो फास्ट फूड की डिमांड करते हैं, तो क्या फास्ट फूड उन्हें देना चाहिए या किस प्रकार से देना चाहिए? आप क्या करते हैं? फास्ट फूड देखिए, बच्चे हैं और बच्चों की जब इतनी आदत हो गई, तो एकदम हम बिल्कुल जीरो पे नहीं ला सकते। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड शुड बी रिड्यूस्ड, लाइक वंस अ वे, once in a week,
और 10-15 दिन में एक बार आप फास्ट फूड घर पे बना लीजिए। और जब हम घर पे बनाएंगे तो उसके हेल्दी ऑप्शंस भी हैं। अगर हमें जी। बर्गर बनाना है तो हम ज्यादा उसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। पाव भाजी बनानी तो बहुत सारा एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स डाल के, कम बटर डाल के पाव भाजी बना सकते हैं। पिज्जा बनाना है तो भी बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, हेल्दी चीज डाल सकते हैं। सो हेल्दी फास्ट फूड बना के और कम फ्रीक्वेंसी पे खाएं तो हम बच्चों की भी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। आशा है कि व्यूअर्स हैं और हम सब भी इससे काफी कुछ चीजें जान चुके हैं कि हमें 60 ईयर के बाद क्या करना चाहिए। और कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ है और इस टाइम हमारे फूड पैटर्न जो चेंज हुआ है, तो हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज, आई मीन इस अपॉर्चुनिटी को कैसे पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने खाने को ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगी स्मिता। जी मैम। हेलो। कि ये बच्चे घर पे जब रहते हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो गुड टाइम टू इनकलकेट गुड फूड हैबिट्स। सो मदर शुड एनकरेज गुड ईटिंग हैबिट्स अमंग द चिल्ड्रन। ओके मैम, एक क्वेश्चन अभी और है जो कि पता नहीं रेलेवेंट है या नहीं, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि व्यूअर्स जानना चाह रहे थे कि जो ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है, या ब्रेन में भी कई बार क्लॉट्स आ जाते हैं, तो उनके लिए आप कुछ अगर सजेस्ट करना चाहिए। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? जो क्लॉट्स, ब्लड में क्लॉट्स आ जाते हैं में और ब्लड आर्टरी में हमारे सर्कुलेट करते हैं और वो कभी भी ब्लॉक भी कर सकते हैं, तो उन ऐसे पेशेंट के लिए आप कुछ अगर सजेशन दे सकते हो फूड से रिलेटेड? नहीं, देखिए, अगर जब क्लॉट ही आ गया ब्रेन में, तब तो इमीडिएटली वी हैव टू कंसल्ट डॉक्टर, because at that time we can't try diets, but once you are under the treatment of doctor, then definitely you can give good diet which is rich in उसमें हमें खास तौर पे क्लॉट है तो विटामिन के कम करना चाहिए, क्योंकि डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और इनमें कुछ में विटामिन के होता है, क्योंकि के हमारा कोएगुलेट करता, सॉरी, ब्लड क्लॉटिंग करता है, तो वो हमें कम देना चाहिए। और बाकी एज द डाइट डॉक्टर सजेस्ट, एंड देन उसका प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए कि क्लॉट ना बने। इसके लिए हमें कम से कम वसा खानी चाहिए, हेल्दी फैट खाना चाहिए, लो कैलोरी फूड खाना चाहिए, हाई फाइबर फूड खाना चाहिए। तो वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रिवेंशन पार्ट। वंस द क्लॉट इज देयर, देन इट इज फॉर द कंट्रोल ऑफ द डॉक्टर। जी मैम। मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी आपसे कि अभी मैंगो का सीजन है, मैंगोस ले लेने चाहिए और क्या डायबिटिक्स भी इसको ले सकते हैं? इस पे कंट्रोल करना चाहिए या क्या लिमिट होनी चाहिए? देखिए, मैंगो अपने आप में इज अ वेरी गुड फ्रूट एंड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि बीटा कैरोट इसमें कैरोटीन है ना? तो मैंगो को लिमिटेड अमाउंट में, हेल्दी पर्सन तो मैंगो खा ही सकता है। हमें मैंगो का शेक बना के चीनी डाल के खाएंगे तो वो थोड़ा सा एनर्जी डेंस हो जाता है, लेकिन आप मैंगो को डाइट में जरूर इस्तेमाल करें। हाँ, डायबिटिक पर्सन क्योंकि हाई शुगर है, इसलिए इसको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में खाएं, लाइक 1 स्लाइस अगर खा लिया तो आपको एनर्जी कहीं और कॉम्पेंसेट कर लीजिए। बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उनको और भी इच्छा होगी कि हमें खाना है। सो लिमिटेड अमाउंट में वी कैन एडवाइज, बट पूरा आम खाएंगे तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए, और रोज मैंगो शेक बनाना वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। जी मैम। मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी बातों का सॉल्यूशन भी दिया है और आपके वैल्यूएबल व्यूज हमें मिले हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इंफॉर्मेटिव एंड थैंक यू। तो मैं बैठी हुई हूँ ना, क्लास ले रही हूँ ना। हमें भोजन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? कई बार हम भोजन कर लेते हैं जिसकी आवश्यकता हमें नहीं होती। You are what, when, how and why you eat. थॉमस एडिसन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, इन्होंने ये लाइन दी है। शरीर की प्रकृति कैसी है, शरीर के दोष, वात, पित्त और कफ हमारे शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं। इसी विषय पर और जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर कीर्ति गोपलानी मैम को। डॉक्टर कीर्ति गोपलानी मैम, आप प्रिंसिपल हैं एल्जेब्रा कॉलेज कोटा में
आप विगत 20 वर्षों से उच्च शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। आप एक न्यूट्रिशनिस्ट एवं नेचुरोपैथिस्ट भी हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एवं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज की मेंबर भी रहे हैं। मैम, आपका स्वागत है। इस बारे में आपको और जानकारी मिलेगी। डॉक्टर कीर्ति गोपलानी मैम। आप मैम, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर कीर्ति गोपलानी मैम, आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। शायद अभी ऑडियो ऑन नहीं है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि अभी जैसे कि मुक्ता मैम ने भी बताया कि भोजन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये किस प्रकार से हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखेगा। यहाँ पर मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि हमें परंपरागत तरीकों का पालन करना चाहिए भोजन में, और जो हम माइक्रोवेव, इंडक्शन, रीहीटिंग, रेफ्रिजरेटर का अगर हम इस्तेमाल कम से कम कर दें तो ये हमारे लिए ज़्यादा स्वस्थकर होगा, क्योंकि रीहीटिंग से बार बार रीहीटिंग करने से उसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। शायद डॉक्टर कीर्ति गोपलानी मैम, आपका कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर प्रीति आलविया मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है। हेलो मैम। हेलो जी मैम। हेलो। हेलो मैम, अभी हेलो। हाँ जी श्वेता, आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ मैम, आ रही है आपकी आवाज। ओके, थैंक यू सो मच श्वेता। कीर्ति मैम की कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सोचती हूँ हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। स्मिता, मैं ये कहूंगी कि बाकी सब व्यूअर्स को बोलो कि अपना म्यूट करें माइक, बीच में डिस्टरबेंस होता है ना? जी प्लीज व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक जो ऑडियो है उसको ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए प्लीज। माइक कैसे म्यूट हुआ? जी हाँ, ये एक बहुत सही समय है जबकि हम इस वेबिनार को कर रहे हैं, क्योंकि घर पर रहकर हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस, बिकॉज हम सब ऑनलाइन क्लासेस ले भी रहे हैं और बच्चे भी सभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो उनमें बहुत फ्रस्ट्रेशन है बिकॉज उनकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है और ना सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कंपनी भी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी प्रभावित हो रही है, तो हमें शीघ्र ही इस पर भी नियंत्रण करना चाहिए। और इसके लिए हमारे साथ में आगे जुड़ेंगी प्रीति मालविया मैम, जो कि कोटा से हैं। तो एक बार मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर कीर्ति गोपलानी मैम की कनेक्टिविटी हो गई हो तो हम उनके साथ में कंटिन्यू करेंगे। Hello, Shweta. Can you hear me? Hello, Shweta. Can you hear me? हाँ, yes, I
गोपलानी मैम, yes, I can hear you. Should I start? Yes, मैम, प्लीज आप स्टार्ट कीजिएगा. अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर कीर्ति गोपलानी मैम हैं. प्लीज मैम आप शुरू कीजिए. Thank you, Smita. Welcome. Good morning, everybody who are connected today with me. I'd like to thank Dr. Veena Changani, Principal Apex College, and Mita Kushresh also to provide me this platform about in this corona pandemic raging around us. It is better we return to the times of Veda. Vedas may be called as science of life because it tells us the holistic way of life. Just as nature has no beginning and no end. इसी प्रकार प्रकृति के नियमों द्वारा संचालित वेद भी अंतहीन है. Have you ever observed the birds and animals? Their body is well proportioned and beautiful all their life because they sleep on ground. प्राकृतिक जल एवं सूर्य किरणें प्राप्त करते हैं, खुले आसमान और शुद्ध वायु का सेवन करते हैं. Their food is living food और which has life force. जीवनी शक्ति उनमें पाई जाती है जैसे घास, पत्ते, फल, वेजिटेबल. अतः ताकतवर एवं निरोगी रहते हमेशा. In Chandogya Shruti, it is written, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन. In Ayurveda and yogic literature, 3 types of diets mentioned: sattvic, rajasic, and tamasic. Sattvic food is juicy, tasty, and nutritious. It includes foods and eating habits that are pure, essential, natural, vital, honest, एवं ये ऊर्जादायी होती है. राजसिक फूड is bitter, acidic, and very spicy. जैसे चाय, कॉफी, chocolate, cold drink. It causes restlessness, unhappiness, and disease. Tamasic food is dry, old, impure. It causes dullness, disease. Our mind, pran, and body also become tamasic. ब्रह्मचर्य एवं आध्यात्मिक साधना में भी बाधा उत्पन्न करते हैं. भोजन खाने का उद्देश्य केवल शुद्धापूर्ति नहीं है, अपितु शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ यह मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है. इसके अलावा सात्विक भोजन हमें शक्ति प्रदान करता है, शारीरिक तापमान बनाए रखता है एवं आसानी से पाचित भी है. It is not exciting. It should not be exciting, and it enhances memory, lifespan, and beauty also. Health-giving diets. What are health-giving diets? First is mono diet. When we eat only one kind of food at a time, it is known as mono diet. उदाहरण के लिए नाश्ते में ताजे फलों का सेवन करना, सायकालीन भोजन में केवल दूध लेना, अथवा एक समय में 2 भोज्य पदार्थों का प्रयोग भी किया जा सकता है जैसे फल एवं दूध, रोटी और गुड़. The scientific reason behind each is that food when it enters the body causes its own reaction according to its quality. भोज्य पदार्थ का पाचन समय भिन्न भिन्न होता है. यदि हम चाहते हैं कि हमारा भोजन पूर्णतः पाचित हो एवं अवशोषित हो तो हमें एक समय में 1 अथवा 2 ही प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करने चाहिए. Food combinations. Vedas have laid down some principles about food combinations which are good for health and unknowingly, जाने अनजाने हम इसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं.
इन वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में सभी को ज्ञात होना चाहिए। प्रोटीन रिच फूड, पहला समूह है प्रोटीन रिच फूड, फिश, मिल्क, dal. With bitter items, it should be consumed, which help in digestion of protein-rich food, जैसे ब्रेड के साथ टमाटर या सब्जियां, दही और सब्जी, दालें और खट्टे फल। दूसरा समूह है या कॉम्बिनेशन rich food with vegetable, salad, dry fruit and sugar. जैसे ब्रेड के साथ हमने सलाद लिया, ब्रेड के साथ शहद, आपने सबको तो मैसेज दे दिया, किसी को लेनी नहीं है। तीसरा समूह है वसीय पदार्थों का पाचन। बहुत नेगेटिविटीज डेवलप हो गई, हमने एक बार और आप लोगों ने एक डिसीजन लिया है, तो अब मैनेजमेंट विल आल्सो थिंक अकॉर्डिंगली। मैम मैं आपको 1 मिनट इंटरप्ट कर रही हूँ कोटलानी मैम। हाँ मैं एक इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी। नहीं सर, देखिए ऐसा है, ये जो ऑब्जर्व किया है हम सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, और ये निर्णय पे पहुंचे कि आप लोगों के लिए पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस समय अगर आप 1-2 दिन क्लासेस लेते और हमें वर्कआउट करके बतला देते, क्योंकि ये वैसे भी हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही कर रहे थे, आप शुरू कीजिएगा। अगर हमें बता देते कि भाई स्मिता मैम, स्मिता वंदना को बोलो म्यूट करे माइक। वंदना भट्टागर। यस डूइंग। कीजिएगा। थैंक यू जी मैम, कंटिन्यू करिएगा। सॉरी फॉर द कोई बात नहीं, बेटा स्टार्ट करो। जी मैम आप कंटिन्यू कीजिएगा। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज बैलेंस डाइट विद रिस्पेक्ट टू, आवाज आ रही है ना स्मिता? जी मैम आ रही है आपकी आवाज क्लियर। बैलेंस डाइट विद रिस्पेक्ट टू अल्कलिनिटी एंड एसिडिटी ऑफ ब्लड, अर्थात संतुलित आहार अम्लीयता एवं क्षारीयता के संबंध में। The blood of a person is regarded to be pure if it is 80% alkaline and 20% acidic after digestion. अर्थात हमारे आहार में 4 भाग क्षारीय भोज्य पदार्थ होने चाहिए और केवल 1 भाग ही अम्ल उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थों का होना चाहिए। If this ratio in blood changes, it is dangerous. यह हमारे रक्त को विषैला बना देता है। Alkaline part of blood repairs tissue, gives new life to cells, and fights diseases. Lack of alkalinity causes diabetes, eye disease, fever, and even death. If some food stuff tastes bitter, it should not be regarded as acidic, but by what it becomes after it enters the stomach. उदाहरण के लिए यदि मैं लेमन लेती हूँ, नींबू लेती हूँ, तो वो 100% क्षारीय है, परंतु उसका टेस्ट खट्टा और कड़वा हो सकता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि उसका टेस्ट कैसा है, परंतु नींबू 100% क्षारीय पदार्थ है। चौथा है नेचुरल एंड लिविंग फूड, जीवित भोज्य पदार्थ। It's the principle of nature that food which has pran, which gives us strength. Nature wants that we eat food as it is found in nature, containing all vitamins and minerals that can be absorbed by the body. But by making it tasty and cooking and frying, we make it lifeless. जैसे अगर उदाहरण लें हम आधा किलो पालक और 100 ग्राम कच्चे पालक का, जिनमें इससे समान मात्रा में हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ताजे सब्जियां, दूध, शहद, अंकुरित अनाज, दालें, बादाम, काजू, ये सभी भोज्य पदार्थ अमृत के समान है। नेक्स्ट है वेजिटेरियन डाइट। भारत में सदियों से शाकाहारी भोजन को ही श्रेष्ठ माना गया है। आज विदेशों में भी
शाकाहारी भोजन को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि मांसाहार द्वारा शरीर में बड़ी मात्रा में विषैले अम्ल, अल्कलॉइड्स, टोमेन्स उत्पन्न करते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही विषैले और हानिकारक है। लास्ट है डाइट अकॉर्डिंग टू सीजन, जिसे शास्त्रों में ऋतुचर्या कहा गया है, अर्थात ऋतु के अनुसार आहार ग्रहण करना। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, जो कि ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक। All kinds of nutrition and rust cannot be produced in all seasons. अतः हमें स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति की दूरदर्शिता ही कहिए कि ऋतु के अनुसार ही विभिन्न भोज्य पदार्थों में भिन्न रस प्रदान किए गए हैं। जैसे एक और उदाहरण है ग्रीष्म ऋतु में और ककड़ी का सेवन करना, जो कि 90% जल इसमें उपस्थित रहता है और ये ग्रीष्म ऋतु के लिए आवश्यक है। अब नेचुरल गिविंग और लिविंग फूड्स के अतिरिक्त 10 ऐसे फॉर्म्स हैं which are known as uncooked food. Seen in the slide. Will Kuldeep share the slide? Nature provides food to all creatures. They do not cook unlike human beings. रामायण महाभारत में भी बताया गया है कि हमारे ऋषि मुनि जंगलों में कंद फल में वास करते थे और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य पका हुआ भोजन, मसाले युक्त भोजन करने लगा, जिसके कारण भोजन में उपस्थित एंजाइम और शरीर में उपस्थित एंजाइम दोनों का ही नाश हुआ और हमारे स्वास्थ्य और आयु पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। कच्चे भोज्य पदार्थों को हम 10 रूपों में प्राप्त कर सकते हैं: स्प्राउट, सैलेड, सॉसेज, चटनी, फ्रूट क्रीम, मिल्क, कर्ड, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, ड्राई फ्रूट, honey, raw sugar and jaggery. Now, first position is sprouts of cereals and seeds, अंकुरित अनाज और बीज। एंजाइम्स इन बीजों को अंकुरित करने में सहायक होते हैं। केवल कच्चे भोज्य पदार्थ में ही क्रियाशील जीवित एंजाइम पाए जाते हैं। Sprouts are the richest source of enzymes, vitamins, minerals, protein, fatty vitamin C also, and ascorbic acid, and like choline, which increases up to 600%. Sprouts supply food in pre-digested form. During sprouting, amylase enzyme, proteolysis enzyme, and lipase enzymes also develop. हम अंकुरित कर सकते हैं गेहूं, बाजरा, मूंग, जौ, मूंगफली, मटर, लोबिया जैसे भोज्य पदार्थों को। दूसरा है सैलेड्स। सैलेड कैन बी ऑफ 2 टाइप, फ्रूट सैलेड और वेजिटेबल सैलेड। वेदों में जिसे फलाहार कहा गया है, मनुष्य जब फ्रूट और दूध पर ही निर्भर हो, इसे हम फलाहार कहेंगे। जब फलाहार या फल हम सिर्फ फल के रूप में भी, कच्चे रूप में भी या सलाद के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे आम, केला, अमरूद को हम दूध, दही या शहद और किशमिश से मिश्रित करके भी इसका सेवन किया जा सकता है। है सॉस अथवा चटनी। सदियों से भारतीय आहार में धनिया और पुदीने की चटनी, आंवले, इमली, खेत केरी के साथ, जो कि हमें विटामिन, मिनरल और पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है फ्रूट क्रीम्स। पके फल जैसे आम, केला काटकर या मैश कर दूध के साथ
दही, शहद और रॉ शक्कर को मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है। आपने देखा होगा दूध और कर्ड, दूध और दही, दूध आप सभी बॉईल करके लेते हैं, पर वेदों के अनुसार गाय का दूध अथवा बकरी के दूध को हम रॉ भी ले सकते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। रॉ मीन विदाउट बॉइलिंग। और दूध दोहने के 2 घंटे या 3 घंटे में ही इसका सेवन किया जाना चाहिए। दही दूध से श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें एंजाइम की उपस्थिति पाई जाती है। फ्रूट जूसेस एंड वेजिटेबल जूसेस जैसे गाजर, धनिया, अंगूर, मौसम्बी, अमरूद, इन सब का, एप्पल का रस हम मशीन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। केवल ताजे फलों का ही और ताजा जूस ही लिया जाना चाहिए। बॉटल्ड, प्रोसेस्ड और कैंड जूस का सेवन नहीं किया जाना चाहिए और आज के समय में तो बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। ये घर का बना हुआ हो, मार्केट से ना प्राप्त करें, क्योंकि हो सकता है कि देर तक रखा हुआ हो, जिसमें विटामिन नष्ट हो जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा मिल्क शेक के रूप में भी सभी जानते हैं कि मिल्क शेक के रूप में भी इसे लिया जा सकता है। ड्राई फ्रूट, बादाम, किशमिश, मूंगफली, अखरोट, और इसका एक विशेष तरीका है कि हम ड्राई फ्रूट को रात में भिगोकर रखें। 8 घंटे भिगोने के बाद जिस पानी में सुबह को हम भिगोते हैं उसका पहले सेवन करें, फिर ड्राई फ्रूट को ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा रॉ शुगर है, हनी है, जैगरी है, जिसमें हनी इज द highest quality of food which is digested as soon as it enters the stomach. राइसिन, खजूर, किशमिश, रॉ शुगर, गुड़, जो कि मिठास के रूप में इन्हें प्रयोग कर सकते हैं, और हमें रॉ व्हाइट शुगर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हनी मोटापे को दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। इसके अलावा कुछ हार्मफुल फूड्स भी आप देखेंगे, जैसे वो भोज्य पदार्थ जिससे कि हम रोगग्रसित हो और हमारी आयु में वृद्धि ना हो, वे नुकसानदायक अथवा हार्मफुल फूड्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला है मिक्स्ड फूड, जो कि जब हम अति प्रकार के अलग अलग प्रकार के भोजन हम एक साथ करें, जैसे एक समय में हमने दाल, रोटी, चावल, सब्जी, खीर, दूध, घी, अचार, फ्रूट्स जो सभी एक साथ ग्रहण किया, वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि पहले बताया मैंने जैसे कि सेवन का, पाचन का समय सबका भिन्न भिन्न होता है। दूसरा है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि विरोधी भोज्य पदार्थ विषों के समान होते हैं। जैसे यदि हमने सम मात्रा में घी और शहद का प्रयोग किया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नॉन वेजिटेरियन डाइट में जैसे आप देखते हैं, अगर अधिक मात्रा में मांस, मछली, अंडे का सेवन किया जाए तो हमारे पाचन तंत्र में अधिक विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमारे सभी अंगों को प्रभावित करते हैं। आज की नई पीढ़ी फास्ट फूड से पूर्णतः परिचित है, जिसमें मिर्च, मसाले, तेल, अकार्बनिक नमक का अधिक प्रयोग किया जाता है उसे टेस्टी और स्वादिष्ट बनाने के लिए, जिसके कारण हम आवश्यकता की अधिक मात्रा में उसे ग्रहण करते हैं, जिसे ओवर ईटिंग कहा जा सकता है, जो हमारे रक्त में ऊष्मा और अम्लीयता को बढ़ा देता है। डेड फूड्स अंत में है, डेड फूड्स अथवा मृत भोजन, वो भोजन जो कि बहुत कम मात्रा में हमें न्यूट्रिशन देता है, वो मृत भोजन कहलाता है। जैसे चाय, कॉफी, विनेगर, शक्कर, जैम, आइसक्रीम, ये हम नुकसानदायक है।
अब भोजन के द्वारा हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि भोजन ही मेडिसिन है या दवा है। When one breaks the law of nature, foreign matter is produced in the body. All diseases caused by them are physical and mental. Vedanta tells us that disease can be cured by taking the right diet. Food is the best medicine. वेदों में कहा गया है जीवो जीवस्य जीवनम, which means living being needs food which has life to sustain him. Here I am describing 4 types of treatment. Fruit treatment. Professor Lerhart says, time when man lived only on fruit. If a person is given fruit when in his childhood only, there is no doubt that he would neither get sick nor get old. Fruits are both food and medicine. Fruit have pure water, sugar, vitamin, mineral, acid, alkali, roughage, taste and good odor. फ्रूट को खाने का भी वेदों में विशेष प्रकार का प्रयोजन या नियम बताए गए हैं। पेड़ों पर पके फलों का ही प्रयोग करना चाहिए। सीजन के अनुसार ही इसे ग्रहण किया जाना चाहिए। छिलके समेत यदि इसे खा सकते हैं तो ग्रहण कीजिए। इसे रोस्ट या पकाइए मत, छिलका मत उतारिए। नमक मसालों का प्रयोग इसके साथ ना करें। एक अमेरिकन न्यूट्रिशन ने बताया कि आधा किलो फ्रेश फ्रूट एवं 350 ग्राम ड्राई फ्रूट हम एक दिन में खा सकते हैं। भोजन से 1 घंटा पहले सेवन करें अथवा नाश्ते के समय फलों का सेवन किया जा सकता है, परंतु भोजन के पश्चात सेवन करने का कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे बुखार में, अगर हम चाहें बुखार में है तो अंगूर का रस, अनार का रस, यदि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी है तो गाजर, टमाटर और नींबू का रस, गठिए में शरीफे का रस, त्वचा रोग है तो गाजर और नींबू, अगर कब्ज की शिकायत है तो किशमिश रात में भिगोकर, जैसे मैंने बताया, वैसे सुबह को हम अंजीर और किशमिश का सेवन कर सकते हैं। फ्रूट के ट्रीटमेंट में भी हमें नेचुरोपैथिक डॉक्टर के निर्देशानुसार ही इसका उपाय किया जाना चाहिए। जैसे पहले 3-4 दिन हम धीरे धीरे पहले अनाज का त्याग करते हैं, उसके बाद हम 3-4 दिन फलों और सब्जियों पर रहते हैं, उसके बाद फलों का भी त्याग कर देते हैं और फलों को ग्रहण करते हैं 3 समय के लिए, और ये 10 समय या ऐसा लंबे समय तक हम इसका प्रयोग करते हैं, तो जो भी बीमारी होगी वो इससे ठीक होती है। नेक्स्ट है हर्बल ट्रीटमेंट अथवा जड़ी बूटियों से। इसका उदाहरण हमने रामायण में देखा। संजीवनी बूटी को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी हिमालय तक गए और इस तरह से लक्ष्मण जी को बचाया गया। डॉक्टर जी दामोर ऑफ ब्रिटिश कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी ने भी कहा है कि हर्ब्स में स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ और सन कॉन्सेंट्रेटेड इन देम, इसमें पृथ्वी की शक्ति और सूर्य का प्रकाश या तेज समाया हुआ रहता है सभी हर्ब्स और पौधों में। He uses 120 herbs which are not poisonous. एग्जाम्पल के लिए हम कॉलेरा में अनियन जूस का प्रयोग करते हैं, टीबी में लहसुन का, कैंसर में गोदी के पौधे
का प्रयोग किया जाता है। गिलोय जैसे आजकल आप सुन रहे हैं डेंगू फीवर में, और इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक है। इसके बाद मिल्क ट्रीटमेंट है, जिसे हम दुग्ध कल्प कहते हैं शास्त्रों में। इट इज अ इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट. It treats the diseases like mental disease, depression, gas, acidity, asthma, TB can also be cured by it. Under the guidance of the doctor, you have to gradually give up cereals, then fruits and milk, then give up fruits also, and you only have to consume milk for a long time. ये दूध गाय का फ्रेश दूध या बकरी का फ्रेश दूध होना चाहिए, जिसे गर्म नहीं किया जाता, शक्कर नहीं मिलाई जाती, पानी नहीं मिलाया जाता, एंड इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. इसमें लगने वाला समय 45 डेज भी हो सकता या 2 से 3 महीने तक भी लग सकते हैं, परंतु एक बार इससे उपचार होने के पश्चात वो दोबारा आपके शरीर में प्रवेश नहीं करता है. उसी तरह से बटर मिल्क ट्रीटमेंट अथवा छाछ कल्प, जस्ट एज इन देवलोक द बेस्ट ड्रिंक इज अमृत. सिमिलरली हमारे वे पृथ्वी पर इसे अमृत के समान माना गया है, जो कि छाछ है. यह डिजीज भी, यह सभी डिजीजेस को इसी तरीके से ही, दूध के तरीके से ही इसका प्रयोग किया जाता है. समय को ध्यान में रखते हुए मैं इसका अधिक वर्णन नहीं करूंगी. ट्रीटमेंट अपने विराम देते हुए मैं यह अंत में कहना चाहूंगी. ट्रीटमेंट फॉर COVID-19 पेशेंट is steaming, gargling, healthy home-cooked food, large content of vitamin C, B complex, proper sleep, rest and isolation, drinking lots of water, vrat rakhna, have faith in God and meditation. Thank you all of you for listening me. Thank you so much. Thank you. Thank you. मैम, आपने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी. मैम, कुछ क्वेश्चंस हैं जो व्यूअर्स आपसे पूछना चाह रहे हैं. मैम, आजकल एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है. हाँ जी, एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है, तो आप क्या मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुन पा रही हूँ मैं. जी मैम, आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत है, तो व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि एसिडिटी होने पर किस प्रकार का भोजन लिया जाए. एसिडिटी होने पर तो शास्त्रों में सबसे पहले ये है कि थोड़ा सा फास्टिंग रखना चाहिए. उसके बाद हम दूध का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे. जैसे मैंने बताया, क्षारीय और अम्लीय पदार्थ, अम्लीय पदार्थों का सेवन इस लिस्ट में भी है. वो भोज्य पदार्थ जो अम्ल उत्पन्न करते हैं, उनका कंजम्पशन बहुत कम कर देना चाहिए और क्षारीय पदार्थों का सेवन करना चाहिए. तो ताजे फल, सब्जियां, दूध, दही. आप ये ना सोचें कि यदि हम नींबू खाएंगे खट्टा तो वो एसिडिटी बढ़ाएगा. ऐसा नहीं है. वो टोटली क्षारीय है. गुनगुने पानी में आप नींबू डालकर सुबह सुबह ले सकते हैं, या इससे सब बहुत बढ़िया इलाज है. होगी मूली का रस 1/4 कप में ले लें और खाली पेट मिश्री डालकर, मिश्री से इसे मीठा कर ले, थोड़ा सा पेट ले. उसमें एसिडिटी में बहुत फायदा करता है. जी मैम, थैंक यू मैम. मैम, मिता प्लीज क्वेश्चन रिपीट करें. आपने जो बातें बताई हैं, तो मैं सोचती हूँ मैम कि कोरोना ने हमें, सॉरी मैम. हाँ जी मैम, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आई डिडंट हियर यू. जी मैम, क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं व्यूअर्स के, बट मैं समय की सीमा को देखते हुए
मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कि किस तरीके से हम प्रकृति से जुड़े, और आपने आज हमें इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है कि किस तरह से हमें कच्चे फूड का यूज करना चाहिए, कौन सी कॉम्बिनेशंस यूज करने चाहिए, हमें हनी का उपयोग करना चाहिए, और सभी नेचुरल फूड या मांस मछली कैसे हमारे अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती है। वाइट शुगर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, मैदे का यूज नहीं करना चाहिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी और आज के कॉन्टेक्स्ट में यह बहुत महत्वपूर्ण है। Thank you so much. धन्यवाद आपका Thank बहुत you so much, Vita, for inviting me here on this platform. Thank you so much for all the kind listening. And I thank all the viewers and also Dr. Mukta. It was such a rewarding session for us from her. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। बिना मानसिक स्वास्थ्य के शारीरिक स्वास्थ्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और इसीलिए हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। कोरोना वायरस एक नोवेल वायरस है जिसका कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण हम सब भय, चिंता, तनाव, अकेलेपन और अनिश्चितता की स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमारी मनोदशा पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मनोवैज्ञानिक पक्ष पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर प्रीति मालविया मैम। डॉक्टर प्रीति मालविया मैम 22 वर्षों से शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। आप संजीवनी कॉलेज बूंदी व मां वैभव लक्ष्मी कॉलेज पारा में प्राचार्य के पद पर कार्यरत थी। आपने किशोरावस्था में तनाव का मनोवैज्ञानिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व उसकी उभरती समस्याओं पर शोध कार्य किया है। मैम डॉक्टर प्रीति मालविया, आप आमंत्रित हैं। हेलो हेलो जी मैम। हाँ जी, आवाज आ रही है मैम? आ रही है मैम, बिल्कुल आप। हाँ जी। कोरोना काल के कठिन दौर पर चलकर कभी डर कर कभी हंसकर हिमालय से अडिग खड़े रहेंगे और निखर कर संवर जाएंगे। अभी इम्तिहान बाकी है दोस्तों, पर मेरा वादा है कि परिजनों और शुभ चिंतकों के साथ और मजबूत बनेंगे। हम कोरोना को हराएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति मालविया अपेक्स यूनिवर्सिटी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर वीणा चंगानी मैम और स्मिता कुलश्रेष्ठ मैम का धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे अभी डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल मैम और डॉक्टर कीर्ति गोपलानी मैम ने आपको बताया कि किस प्रकार से हम खाद्य पदार्थों को ध्यान में रख करके और कोविड-19 कोरोना को हरा सकते हैं, उसी के साइड बाय साइड आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए आवश्यक होता है। मानसिक स्वास्थ्य आपके मन पर असर करता है। मन, भाव, सामाजिक तथा मानसिक संपन्नता से संबंधित रहता है। वह व्यक्ति किस प्रकार सोचता है, वह व्यक्ति किस प्रकार महसूस करता है और किस प्रकार व्यवहार करता है, यह सभी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अभी स्मिता मैम ने बताया कि मनुष्य जो है वो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य यानी संपूर्ण स्वास्थ्य एक दूसरे से आपस में बुनियादी तौर पर जुड़े हुए होते हैं। मनोचिकित्सक इस बात से भी सहमत हैं कि संक्रमणकारी विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 कोरोना आम लोगों में तनाव, दबाव, अंतर्द्वंद और कुंठा को बढ़ाती है, जिससे वह अवसाद और मनोविकृति के और आगे बढ़ता है। यही हमें चाहिए कि वह व्यक्ति इतनी सीवियर कंडीशन में ना हो जाए कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़े, हम उसे घर में रहकर ही ट्रीट करें। संक्रमण कार्य वायरस जो है वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। इसके कारण है, जैसे एक व्यक्ति है जिसकी दिनचर्या नॉर्मल जो
रूटीन रहता है वह कोरोना काल में प्रभावित हो रहा है, और यही कारण है कि वह व्यक्ति डिप्रेशन में या टेंशन में नजर आता है। बढ़ती बेरोजगारी, रोजगार छिनने का डर, परिवार से दूर रहना, अर्थव्यवस्था का खराब होना, एकांत में रहना आम लोगों में नकारात्मक और मानसिक विकास को आगे बढ़ा रहा है। आज हर व्यक्ति को चिंता है। उसका लेबल जो है वो कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन अपनी अस्थिरता को लेकर के वह चिंतित नजर आता है। यह चिंता किस कारण से हो सकती है? सामाजिक दूरियों से हो सकती है, स्वच्छंद जीवन जीने में रुकावट आने से हो सकती है, आर्थिक परेशानियों से हो सकती है, या जैसे महिलाओं को है कि घर में सामान नहीं है, इसी से ही टेंशन हो सकता है। व्यवसाय का बहुत बड़ा हाथ है कि व्यवसाय में रुकावट होना आम व्यक्तियों में चिंता की ओर बढ़ता है। यह चिंता, दबाव, अंतर्द्वंद, अवसाद और तनाव में बदल जाता है। भारतवर्ष में सोशल डिस्टेंसिंग और होम क्वारंटाइन जैसे शब्द ही अपने आप में निराशा उत्पन्न करते हैं। अब जब यह सारी निराशाएं, अवसाद, चिंता व्यक्ति में उत्पन्न होता है, तो इसका व्यक्ति के ऊपर क्या लक्षण देखने को मिलते हैं कि आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, या आप किस प्रकार से पता लगाएंगे? देखिए, जैसे कि सभी जो स्वास्थ्य है वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि शारीरिक प्रभाव देखने को मिलता है। उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, वह जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, थकान होने लगती है, ब्लड प्रेशर जो है वह कम या ज्यादा होने लगता है। तो यह सारी चीजें आपको उनमें देखने को मिल सकती हैं। भावात्मक प्रभाव पड़ता है। भावात्मक प्रभाव में चिंता, डर, निराशा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अस्थिरता देखने को मिलती है। इससे वह व्यक्ति कभी तो बिल्कुल चुप हो जाता है और कभी बहुत ज्यादा बोलने लगता है। तो यह सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। मानसिक विकास पर असर, उसमें बुरे बुरे नकारात्मक जो विचार है वह उत्पन्न होने लगते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, चिंता देखी जाती है, अंतर्द्वंद यानी जो उसके मन में चल रहा है वह शेयर नहीं करता है, तो इससे उसके मानसिक विकास में प्रभाव पड़ता देखा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य को संयमित रखने के लिए मैं आपको कुछ सजेशंस बताऊंगी। सबसे पहले है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। हेलो, सकारात्मक सोच रखें। घर में कोई भी व्यक्ति है उसमें पॉजिटिविटी होना बहुत ही आवश्यक होती है। धैर्य रखें, प्रॉपर नींद लें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, योग करें। इसके लिए डीप ब्रीथिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। अनुलोम विलोम करें, यह बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे कि आपका मन जो है वह शांत होता है। अपनी नई दिनचर्या बनाएं जिसके कारण आप अपने रुचियां और अपना जो टाइम टेबल है घर में रह करके जो आप कार्य कर सकते हैं उससे हेलो हाँ जी बढ़ाएं। रिश्तों की मजबूतियों को बनाएं, आपस में सामंजस्य स्थापित करें। परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं वह एक दूसरे की भावनाओं को समझें, उनको अहमियत दें, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। खेल खेलें, आउटडोर गेम्स आप नहीं खेल सकते तो इंडोर गेम खेलें, इससे भी आपके मानसिक स्वास्थ्य जो है वह संयमित रह सकता है। किसी को यदि म्यूजिक सुनने में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक सुने और डांस करें, जिससे आप बहुत न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। किताबें पढ़ें, लेख लिखें,
बच्चों के साथ मस्ती करें, बच्चों को टाइम दें। और जैसा कि डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल मैम और डॉक्टर कीर्ति कोपलानी मैम ने बताया है कि अच्छी अच्छी रेसिपीज बना करके और एंटरटेन करें। और रेसिपीज बनाने का काम सिर्फ फीमेल्स का नहीं है, वो सभी लोग, घर के जितने भी मेंबर्स हैं, वो उनको सहयोग दें और इसमें आगे बढ़े। इसी प्रकार से सुपाच्य और पौष्टिक भोजन करें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य जो है वह सही रह सके। शरीर सही है तो मन भी सही रहेगा। शरीर और मन एक दूसरे के पूरक होते हैं। कोविड-19 में हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी हैं। यह सावधानियां होती हैं, जैसे आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, मुंह पर, नाक पर मास्क का उपयोग करें, या अगर मास्क नहीं भी है तो किसी भी प्रकार से कपड़े का उपयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, सामाजिक समारोह, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। ऐसे बहुत सी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब यही चीजें हम बार बार रिपीट करवाते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, तो उसका भी हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और हम निराशा की ओर जाते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि कहीं हमने हाथ धोना छोड़ तो नहीं दिया, कहीं हमने इस सामान को टच किया था और हमने सैनिटाइज किया या नहीं किया। तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा ज्ञान होना भी अपने आप में एक कमी होती है। तो वह चीज ना करें, जो प्रॉपर है, रिलैक्स होकर के आप काम करें। और यदि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति परिवार में परेशान है, तो परिवार और मित्रों का काम है कि वह आपस में सामंजस्य बिठाएं, आपस में बातचीत करें। अब तो बहुत ज्यादा नेटवर्किंग की भी प्रॉब्लम नहीं है और डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो मोबाइल पे बात करें आपस में और अपने आप को न्यूट्रल करें। यही समय है जब हम परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करके अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। और पूरा जीवन जीने के बाद भी हम इतना अच्छा गोल्डन पीरियड अपने लाइफ में कभी नहीं पाएंगे, जब हम सभी घर में हैं और परिवार का हर सदस्य हमारे पास है। तो अच्छी तरह रहिए और अच्छी तरह जिए, अपना मानसिक विकास अच्छा करिए। सब लास्ट में मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने हमें, डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, प्रशासन, पुलिस, शासकीय कर्मचारी, जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ मिलकर हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और हम उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। स्मिता मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैम, मैंने अपना ऑडियो ऑन कर दिया है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये बताया कि किस प्रकार से व्यायाम, प्राणायाम, इंडोर गेम्स, म्यूजिक, डांस, जो कि बहुत अच्छा आइडिया है, और हम कुछ समय अपने बच्चों के साथ भी बिताएं। अगर हम इन सारी चीजों का ध्यान रखें तो शायद जो मेंटल प्रेशर एक बिल्ड हो जाता है और हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, इस स्थिति से बचा जा सकता है। और वैसे भी यह एक कुचक्र है कि मेंटल टेंशन हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जो हमारी डाइट को प्रभावित करता है, और फिर हम टेंशन और दूसरी प्रॉब्लम्स से जुड़ जाते हैं। तो निश्चित रूप से शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक, यह सभी फैक्टर्स पे हमें ध्यान रखना होगा, तभी हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Wellness is a full integration of physical, mental, and spiritual well-being. Each affect and overlap other. Negligence of any one factor may affect health adversely. तो हमें सभी फैक्टर्स का ध्यान रखना है, तभी हम
सभी समग्र रूप से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएंगे एवं कोरोना जैसे भयानक संक्रमण से अपनी रक्षा कर सकेंगे। जैसा कि मैं सोचती हूँ कि हम सभी बहुत अवेयर हैं और सोशल मीडिया से टच में रहते हैं, उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब प्राप्त हो पाती है जो कि पुराने समय में नहीं हो पाती थी। तो हम सब इन बातों को फॉलो भी कर रहे हैं, पर मैं आशा करती हूँ कि आज जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है हम इसको और भी ज्यादा अपने रूटीन में शामिल करेंगे एवं मैं आप सभी के स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं आपको देती हूँ। इसी के साथ मैं डॉक्टर वीना छंगानी मैम को आमंत्रित कर रही हूँ। डॉक्टर वीना छंगानी मैम। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्स विश्वविद्यालय की ये सौभाग्य है कि आज हमारे इस वेबिनार की जो शुरुआत हुई डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल, डॉक्टर प्रीति मालविया और आप लोगों ने जो हमें बताया, जैसी बातें कही, वाकई वो बहुत ही हम लोगों को उत्साहित करने वाली थी। मैं डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल मैडम आपसे कहना चाहूंगी, ये जो अदृश्य वायरस हमारे बीच आके बैठ गया है, नुकसान आ गया था। अब आवाज आ रही होगी? जी मैम, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल। तो मैम डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल मैम का मैं धन्यवाद दे रही थी कि उन्होंने डायबिटीज के बच्चे साधन बताया। और एक बार उन्होंने कही कि इन दिनों में पार्टी हो गई, भोज और दुल्हा भोज ऐसे कम हो गए, जैसे हमारे समाज में से कुरीतियां भी निकलने लगी और हमें के भोजन को हमें खाने देना है, हमें लेना है कि हम लेकर हेल्दी रख सकते हैं। गोपलानी मैम, आप हमें रामायण और महाभारत काल में लेकर आपने जो वैदिक और बारे में, उस समय के भोजन के बारे में, राशि तामसी और सात्विक भोजन के बारे में बताया। मैम ने रामायण का और महाभारत के उदाहरण दिए जो अपने आप में अमृत के समान थे। अमृत के समान डाइट के बारे में बताया। मैम आपका बहुत 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 धन्यवाद। और साथ ही डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रही हैं, मानसिक तनाव को कैसे कम किया जाए इस बारे में बात की। वाकई हम इन दिनों में आप खुद अपने आप में एहसास कीजिए कि हमें आजकल बिना बात के गुस्सा आने लगा है, महसूस होने लगा है, छोटी सी बात से हमें गुस्सा आने लगा है। हमारा जीवन बदल गया एकदम। हमने कभी सोचा न था वो आदत हो गई। हम मोबाइल के प्रयोग पे और नेट के प्रयोग पे अपने बच्चों को रखते थे, लेकिन अब हमारी आवश्यकता बढ़ गई। महिलाएं घर का काम और नौकरी करने में दिक्कत महसूस कर रही थी, लेकिन अब काम वाली नहीं आ रही, बड़े आराम से कर रही। अब उनको उसमें दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि उन्हें पता है ये काम करना है। तो ये अगर सकारात्मक सोचते हुए, जैसे प्रीति माल मैडम ने बताया, हम चलते रहे तो आगे का रास्ता ऐसा होगा कि एक दिन हम मुस्कुराएगा इंडिया, हम जरूर मुस्कुराएंगे। और इस मुस्कुराहट में पूरी तरह हमेशा के लिए साथ देगी अपेक्स यूनिवर्सिटी। ये वचन है
अपेक्स यूनिवर्सिटी हमेशा ऐसे प्रोग्राम कराती आई है और कराती रहेगी। उसने कहा था कि आप बच्चों को, छात्राओं को, विद्यार्थियों को लेके इतने कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम करा लेते हैं, लेकिन अब क्या होगा? तो मैंने ये वादा किया था कि अब भी हम वैसे ही करेंगे, बल्कि और अच्छा भी कर पाएंगे। तो देखिए, आप आज भोपाल से, कोटा से और जयपुर से हमारे साथ हैं, और हमारे साथ देख रही हूँ फेसबुक, यूट्यूब में और इस वेबिनार में करीब 200 के आसपास मिलाकर उपस्थिति दर्ज कराई है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस उपस्थिति में महिलाएं ज्यादा दिख रही है। और इन महिलाओं को मैं आज हरियाली तीज का भी दे रही हूँ। ज्यादातर महिला मेरी तरह धैर्य में, जयपुर का एक बहुत बड़ा त्योहार, मैं यही कह रही थी कि विश्वविद्यालय हमेशा इस बात का वचनबद्ध है कि वो शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में पूरा योगदान देता है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट हिंदी, आर्ट्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, जर्नलिज्म है, साइंस डिपार्टमेंट सेमिनार आयोजित की थी। उन्हीं से मिलते हुए हमारे पास होटल मैनेजमेंट है, फैशन डिजाइनिंग है, फार्मेसी है, बहुत से कोर्स हैं जो कि बड़े उच्च स्तरीय स्थिति कराए जाते हैं। में एमए में और यहाँ तक यहाँ पीएचडी भी हो रही है। इसके अलावा मैं ज्यादा धन्यवाद डॉक्टर स्मिता कुलशेष को, जो हमारी हेड है होम साइंस डिपार्टमेंट की, और उन्होंने ये बेड़ा उठाया था ऐसा सेमिनार कराया जाए जिसमें कि आज की समस्याओं को लेके उसका समाधान किया जाए। मैडम, डॉक्टर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कार्य किया, और आप सबसे अनुरोध है कि इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। जो हमें देख रहे हैं, जो वक्ता हैं, जो श्रोता हैं, उन सबको अपेक्स विश्वविद्यालय से शुभकामनाएं। और जब भी ऐसे कार्यक्रम हो, आप जरूर हमारे साथ शामिल हो। प्रीति मैम कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके ही कुछ शब्द हैं जिसको मैं रिपीट करना चाहूंगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति मैम का। और मेरा साथ करीबन 25 से 30 साल के बीच का है, तो हम एक दूसरे की इसी तरह, गोपरानी मैम से भी हैं, मुक्ता मैम से भी मैं पिछले 5 साल से, 3-4-5 साल से तो मिल ही रही हूँ, उनकी विशेषताएं भी मुझे अपने आप में बहुत अच्छी लगती हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सबका, जो भी देख रहे हैं, जो भी इससे जुड़े हैं अपेक्स यूनिवर्सिटी से, उन सब की तरफ से आप सबका धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद। स्मिता मैम। Thank you, madam. Thank you so much for inviting us. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you for inviting us. धन्यवाद मुक्ता मैम। धन्यवाद कीर्ति गोपरानी मैम। धन्यवाद। Thank you, मैडम, आपने ऐसे याद करते रहिए। Thank you so much, स्मिता। Thank you, ma'am. पे कर दो, समाप्त कर दो। वो कर दिया मैंने। ये राशि के तो बाल सवरेंगे ही सवरेंगे।
माशाल्लाह बोला फिर तो बोलना चाहिए सारे